محمود اللہ خان صاحب کا دیتا ہے. یہ پاکستان میں جب تک اس طریقے کے چور برجمان رہیں گے نا یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آج سب احتساب کریں, اپنا اپنا ٹیکس ادا کریں, ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہوں نے تک تو میرے نیچے والا جتنا میرا عملہ ہے وہ سارا کرپٹ ہوگا. انہوں نے تک کشکول توڑ دیتا ہے نواز شریف صاحب. جو ٹیکس نہیں دے رہے ان سے لو نا آپ. وہ کشکول دی تک گال دیکھو نا. انہوں نے آج امور صلاحی کے خلاف چل رہے ہیں نا کیس, یہ سارے انہی کی آل اولاد ہیں. یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. نہیں تو ساری اولادیں یہ لندن جاتے ہیں, یہ لندن جاتے ہیں اس طریقے سے جاتے ہیں کہ میں گارڈن نہیں جاتا. ضیاء الحق کے اس میں گارڈن میاں نواز شریف صاحب نے تو معافی مانگ لی کی پیداوار ہے. میاں نواز شریف نے تو معافی مانگ لی. آپ تو بھٹو صاحب کے قاتل ہو, ہیرو اسلامی دنیا کا ہیرو. اس کے قاتل آپ ہو, جماعت اسلامی والے قاتل ہیں. اس نے تو کشمیر بیچ دیا یار. کس نے بیچا ہے؟ آپ کو عزت دی, نام دیا, ٹوٹا ہوا پاکستان جو تھا وہ بھٹو صاحب نے دیا. ایسا ہے تو آپ بھٹو صاحب کا احسان مان رہے ہیں, میاں نواز شریف کا کیا مان رہے ہیں؟ اچھا میاں صاحب نے معافی مانگ لی قوم سے کہ بھائی میں نے جنرل ضیاء ڈکٹیٹر کی سپورٹ کی تھی, میں معافی قوم سے مانگتا ہوں, میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. عمران خان نے بھی معافی مانگی ہے, لیکن کچھ لوگ معافی بھی نہیں مانگتے. اس نے بھی مانگی ہے معافی. جو قاتلوں کے اسکین میں بیٹھے ہوئے تھے وہ معافی بھی نہیں مانگتے نا. صحیح. اچھا میری آواز ذرا اتنی زور سے نہیں نکل سکتی تو ساتھ اختلاف ہی نہیں کر سکتے. تو ساتھ نہ کرپشن ہے چوے نہ بے ایمانی ہے. میں آپ کے سامنے پانچ موقع نہیں ملا نا. صحیح حکومت ملے تو پھر لہٰذا اس کہانی پہ تو سبھی اتر آئیں گے کہ موقع دو تو سبھی کرپٹ ہوں گے. یہ بات مناسب نہیں ہے, مگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 5 نکات رکھتا ہوں تاکہ وہ جو جوش جذبہ ہے نا گفتگو کا, وہ آپ تو چاہتے ہوں گے کہ کمرشل زیادہ آئیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. میں 5 نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اپنا تا جماعت تحریک انصاف کوئی فیصلہ نہیں کریں دی تو ساڈے چینل تے مگر بزنس نہ ملے لوکاں کو. اے واحد چینل ہے 5 جماعتاں بیٹھن سائیں, اے دیکھو تہاڈا پیار ہے. اے بس اے چینل نے تو دے حواس کھول دیکھیے کرپشن پر پچھلے 2-3 سال تہاڈی جماعت سارے سرائے کی واسطے کیا کریں دی پئی ہے, میں کو دسو. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سرائیکی صوبے کے حوالے سے آپ کے یہاں بیٹھ کر میں گفتگو کر چکا ہوں. کیا ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ سرائیکی صوبہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز میں مزید بننا چاہیے, مگر ایشو اس وقت جو غربت, مفلسی, بے روزگاری, بچے بیچے جا رہے ہیں ہے نا, اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ فوکس کر لیں. چلو ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. لہٰذا میں آپ کے سامنے 5 نکات رکھ رہا ہوں. ذرا صبر کے ساتھ بڑی جلدی گزر جاؤں گا اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیے کہ اس پر تقریباً لوگوں کا کنسنسس ہے کہ کرپشن ہے ضرور, ساری پارٹیز کہتی ہیں کہ کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے طریقہ کار اور کیسی لیڈرشپ ہو یہ عوام فیصلہ کرے گی. ایک دوسرے یہ کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر, یہ تیسرا سال ان کو پورا ہو گیا, پاکستان کا بیرونی قرضہ 30 ارب روپے تھا, ڈالرز. ٹھیک ہے, آج 55 ارب ڈالر ہے, 55 بلین ڈالر, یعنی 25 بلین ڈالر قرضہ ہم نے لیا ہے. اور جو بیرونی ممالک سے جو ایڈ آ رہی وہ بھی قرضہ ہے امریکنوں کا, ہے نا, وہ 2-2.5 بلین ڈالر پر ایئر وہ لیا ہے. اچھا ایم ڈی گل صاحب آپ کے پاس $1 بھی آیا, اس کا کہاں گیا؟ ملک کے حالات بہتر ہوئے, کہاں گیا پیسہ یہ؟ یعنی مجھے بیوقوف کب تک بنایا جائے گا؟ اور پھر جب آپ یہ بات کریں کہ کرپشن نہیں ہے اور ٹیکس دیا جاتا ہے تو 60% لوگ جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. یہ کیسا انصاف ہے؟ غریب روزانہ پیٹرول کا ٹیکس بڑھ رہا ہے, غریب کے اوپر بجلی کا ٹیکس بڑھ رہا ہے, غریب کو پانی نہیں مل رہا, غریب کو روزی نہیں مل رہی ہے نا. اور یہ 60% تو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی اچھا وہ جگہ بنا دی جائے جہاں پہ یہ لوگ جائیں, کیونکہ یہ لوگ غریب ہیں جو ایم این اے اور ایم پی اے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. تو میری اپیل ہے کہ یا تو وہ ٹیکس دیں یا پھر کہیں ایدھی صاحب سے کہا جائے کہ بھئی ان کے لیے کوئی گھر بناؤ جہاں پر ہے. ذرا ایک ٹیلی فون. جی السلام علیکم. 3 نکات باقی ہیں. السلام علیکم سر. اچھا ڈراپ تھی گی. ہاں بھائی صاحب, دوسری بات, اب بات یہ بھی ہوئی کہ کون خوددار ہے کیا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے 3 وکی لیکس آئے نا, وکی لیکس کے اندر زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ڈرون کے حملے کرو, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہے نا, اوپر ہم کہیں گے مگر اندرونی طور پر تم جاری رکھو. یہ مشرف نے اے آکھے کہ معاہدہ مشرف کو بھی رکھیں اپنی جگہ پر, ہے نا. انہوں نے بھی کہا ہوگا. نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ بھئی بہت شکریہ, امریکن امبیسڈر کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے کیانی صاحب کو ہمارے ہاں لگوا دیا. ایک چھوٹا جا بریک دیں, ایک چھوٹا جا بریک ہے نا, تہاڈی موجودگی کمرشل بھی تے ڈھیر ہے نا. سیکھن کے ایک چھوٹا جا بریک تسا دے پے وے ایم ڈی گل دے نال. جی ویلے بریک تے گیا ہم تو کوئی 5 نکات دی گال عارف علی صاحب کریندے پین, 2 اساں سن گدے تے 3 باقی ہیں. پہلے ایک فون سن دیں ولی نہ دے نکات ہی. اج کل یہ دور ہے, کوئی 10 نکات دیندا پے, کوئی 9 نکات دیندا پے. یہ اج کل نکاتاں دی گال ہے, بیا کچھ کہہ نہیں. عوام دا کیا حال ہے؟ نہیں, ایک دوجے کو خراب کرن انہاں دا کم ہے. تساں سی ایک ٹیلی فون ہے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सी जी, मैं विकीलीक्स की बात कर रहा था तो मैंने आपके सामने नवाज शरीफ साहब की बात रखी, जरदारी साहब की रखी, और इमरान खान का साहब के सिलसिले में विकीलीक्स में खुद ही इस बात पर आया कि एक खुददार आदमी है जो अमेरिका का प्रेस्क्रिप्शन है, उसने हमें खुद लेक्चर दिया, अमेरिका की बात नहीं मानी। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राजनपुर से एक साहब का फोन आया जी बिल्कुल है ना, और उन्होंने कहा, और अभी 2-3 फोन आए, एक राजनपुर से आया, और मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि गुर्बत, मुफलिसी, बेरोजगारी, बच्चे बेचे जा रहे हैं, सब कुछ। उसके साथ साथ जनाब राजनपुर रोजन के एरिया के अंदर डकैतियां और अगवा बराए तावान, यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितनी शहर से दूर है तो बिल्कुल ही खत्म है। तो लिहाजा मेरा आपसे कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी वैसे ही इनकलाब आने का इम्कान है जैसे मिस्र में, जैसे ट्यूनिशिया में। आप वाकई, मैं कहता हूं, मुझे कोई शक नहीं इस बात का, जैसे यमन के अंदर शुरू हुआ, जैसे उर्दून के अंदर शुरू हुआ, वहां तो मिस्र के अंदर तो हमारे यहाँ से बेहतर हालात थे, ट्यूनिशिया में तो और भी बेहतर हालात थे, मगर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं जब उनकी बेइज्जती हो। और जिस तरह से अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो रवैया रखा, जिस तरह से हमें गुलाम बनाया हुआ है, तो और हम तो भूखे भी हैं, है ना, हमारे तो तन पर लिबास भी नहीं है, तो यहाँ पर इनकलाब का इम्कान बहुत ज्यादा है। और जब इनकलाब आया तो मैं समझता हूँ कि सारे स्टेटस को बदलेगा। और ये जो बात है, मैं समझता हूँ 10 साल ए प्रापागंडा मोहतरम मुशर्रफ साहब करेंदे रह गए क्या कि ना तो जरदारी को आवन ऐसा, ना बेनजीर ना आने दें, उनकी ना बात नवाज उनके साथ शरीफ, है, ना उनके नवाज साथ शरीफ, है, वो बातें आए उनके साथ बैठे सर, वो आए बैठे, हाँ, उनके वो बातें उनके साथ है, वो आए मगर बैठे, मगर हालात खराब हैं, इस पर आप यकीन लेकिन करें। मिस्र वर्गे हालात क्या नहीं, ये देखो अल्लाह मिस्र की मईशत और महंगाई पाकिस्तान से कम थी, लेकिन एक 25 साल तो एक बुथाड़ उठा बैठा ही ना, उदे नाल नफरत है लोगों को सर, भाई हालात के खिलाफ इनकलाब आया है। 25 साल तो लिहाजा यहाँ भी रख लो 25 साल नहीं होता, बल्कि किस्मत की गाल होता। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारे को लांगा पे। जी अस्सलाम वालेकुम, एक टेलीफोन छोड़ जी, अस्सलाम वालेकुम, ने कह दिया था हमें, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक टेलीफोन भिरा हो, एक फोन। जी सर अस्सलाम वालेकुम, जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमरी गुल साहब, दुबई तो यूं बात कर रहा सही, कित्थू गाल करे ने पेवे? दुबई तू। अच्छा बिस्मिल्लाह, हुकुम करो। क्या हाल है जनाब, ठीक हो सही? बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा करम है, अल्लाह दा। सारा प्रोग्राम दे दे माशाल्लाह, चंगा प्रोग्राम चलता है। दुबई च बैठे वे कौन कौन बैठे? जी दुबई च बैठे हैं भाई। माशाल्लाह, हुकुम कोई सवाल? हेलो जी सर बोलो, आवाज आंदी पई है जी। असे मैं नाल समीउल्लाह खान बैठे थे सही, इन्हां दा ताल्लुक है जामपुर दे नाल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ए जेड़े भी बैठन सियासतदान, मेरे ख्याल है इन्ने को आवाम नाल कोई मोहब्बत कहनी। ठीक है, तुम्हारी गाल बचा है। अपने झेड़े झगड़े को छोड़ो, कोई आवाम दे बारे सोचो। हाँ ठीक है, सही, ये सुन के नुसी जी। गेम से कोई फायदा नहीं है। हम हमारा देखिए, एक सेकंड लेट मी नाउ। अच्छा देखिए बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हमारी हुकूमत है वो है भी अवामी हुकूमत, ठीक है, गरीबों की ही हुकूमत है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकलाब की जो इन्होंने बात की, लेट मी फर्स्ट क्लियर दैट, वो सिविलियन डिक्टेटरशिप की वजह से इनकलाब आया। यहाँ तो जमहूरियत ऑलरेडी है, तो इनकलाब किस चीज का? इनकलाब तो आ चुका है जिस दिन वोट से इस मुल्क का फैसला हुआ था, बाकायदा जमहूरियत आई थी, और इस मुल्क में हमारे कायद को बाकायदा दी गई थी कि आप मुल्क को लेके चले। देखिए मेरी बात सुने, उसके उसमें जाएंगे तो वो पूरा एक लॉन्ग टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है भाई, बड़ी लंबी बात। नहीं मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। एनआरओ का जो था, आप मुझे बताएं कि जितने भी हमारे पार्टी के लीडरान हैं वो सब अगर एनआरओ के थ्रू नहीं आते तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या जमहूरियत आ सकती थी? वो भी झूठे केसेस बनाए गए थे जिसकी वजह से एनआरओ आया। एक सेकंड, झूठे केसेस बनाए गए थे। एक सेकंड, लेट मी स्पीक, आई डिडंट स्पीक इन योर टाइम, लेट मी स्पीक। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। एनआरओ जो है वो झूठे बनाए गए थे केसेस, 11 साल उसको प्रूव नहीं कर सके, तो फिर किस एनआरओ की आप बात कर रहे हैं? फिर किस एनआरओ की? उसको प्रूव करना थे, उसको प्रूव करना थे। ये भी हमारे साथ थे जब हम आए थे, ये भी हमारे साथ थे। अच्छा दूसरी बात, ये आपके जो वो जो चंदा मांगते थे, वो किससे चंदा मांगते? कटोरी और कचकोर लेके जो जाते हैं, और जो प्लीज मैंने टीवी पे खुद देखा है, इन्होंने कहा है कि हर जगह बाहर से भी लेकर आए, बाहर से कितने चंदा लिया। आप छोड़े ये बात, इकबाल का शेर अगर आप इजाजत दे तो सुना दूं इसी पर। इस पे एक मुशायरा रख लेंगे, मुशायरा रख लेते हैं ना, एक शेर सुना दूं जो है ना। मैं खाने में आज एक रिंदे एक शेर सुनो, एक शेर सुनो ना, एक शेर सुन लो, है ना, चीखने से कोई फायदा नहीं। शेर सुनो, आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे, आप ही बात करेंगे, आप अपने वक्त में शेर सुना दीजिएगा।
8 hand check Castrol Active 4T से तावन पेश किताबें नापे। वर्ल्ड कप दिखाने श्रीलंका में क्रिकेट का मजा लेने के लिए खरीदें कैस्ट्रॉल एक्टिव 40 और बोले क्रिकेट की बोली। इंदे कोल पहले एक सेकंड अयूब ने कीनी मदद नहीं की थी, याया ने कीनी मदद नहीं की थी, जियाउल हक ने कीनी मदद नहीं की थी, मुशर्रफ ने कीनी मिला रहे हो। अवामी दौर है तो सारा तो बेड़ा गर्क कर गए। अवामी दौर बेड़ा गर्क करेगा ना तो फिर जमहूरियत को खतरा है। इंदे कोल पहले वल क्या थी है, इंदे कोल पहले तुसा तखीर दी इतने मखरूज नहीं थे $55 बिलियन के। और आज स्टेट बैंक की खबर है कि कितना पैसा आपने अंदरूनी कर्जा लिया है वो इसके अलावा है, और एक पैसा आवाम को नहीं मिला। मुल्क दिखता नहीं है कि किस दिख रहा है, किस तरह से महल बन रहा है, बाहर महल बन रहा है, बाहर महल के कागजात रद्दी में बिक रहे हैं। हाँ ये हो रहा है, अब तो रद्दी बिक रही है, इस मुल्क की रद्दी बिक रही है, बैंक के कागजात रद्दी में बिक रहे हैं, पकौड़े वाले बेच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सब मिलके एक जिस मुल्क के अब तो असासे तो बिक गए, स्टील मिल बेचने की तैयारी है, हमारे NIC का चक्कर चल रहा है, उसे इंश्योरेंस कंपनी का मेरी एक बात सुने, करप्शन किसी को भी नहीं पसंद। अब बाकी रद्दी बची थी, झूठा इल्जाम ना लगाएं, झूठा इल्जाम लगाने वाले भी अल्लाह को नहीं पसंद। आप अगर वाकई प्रूफ कर सकते हैं लाइए, आप कागजात लाइए, छोटा सा प्रूफ ब्रेक करें। आ रहे हैं जनाब। प्रोग्राम तुसा दे दे पेवे MD गुल दे नाल ते क्या खाओ अल्लाह दा नाम मनो, लोग क्या कह सकते। लड़ाई झगड़े की बात वोट नहीं गिरन है, बेसो तो करप्शन किसी को नहीं पसंद, हम भी करप्शन के खिलाफ है। जहां तक सवाल है टैक्स का, यस वी आल्सो से, हम भी कह रहे हैं टैक्स हर एक को देना वो है, लेकिन कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे, ठीक है, हम सब मिलकर लेकर आएंगे। एक शख्स का काम नहीं है कि मुल्क की हर चीज को बदल दे, और इसमें बहुत सी पार्टी साथ है, वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन आप इस वक्त मुल्क के आप हालात देखें, टेररिस्ट देखें, टैक्स इतने ज्यादा है कि आप जो बैठ के तनकीद करते हैं ना, सॉरी टू से, वो तनकीद जो है ना, तनकीद वो आप कौन है? 40 चोर आप लोगों के, 40 चोर आप लोगों के जो बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। कौम जानती है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप लोग इतने अच्छे हैं तो व्हाई डोंट यू कम? आपको क्यों नहीं सेलेक्ट करती आवाम? करे ना आपको सेलेक्ट, हमने तो मना नहीं किया है, लेकिन दूसरों के देखें उसका शौक सबको होता है आकर मुल्क की खिदमत करने का। आप लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आए, हमने भी हमारी भी ख्वाहिश है। अगर अवाम आपको सेलेक्ट नहीं करती तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, लेकिन बर्दाश्त का मादा रखें आप लोग, बर्दाश्त का मादा रखें। आपके लोग क्या अमेरिका के घोड़े पे कौन है? अमेरिका के घोड़े पर सवार आए, दुबई के अंदर डील हुई है, उसकी बुनियाद पर आए। दुनिया जानती है, NRO के तहत डील हुई है, सब कहते हैं, मुशर्रफ साहब कहते हैं, सब कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, नेगोशिएशन हुई, नवाज शरीफ को कैसे, और उनका एजेंडा चलाने के लिए आए हैं, ड्रोन हमले चल रहे हैं, अमेरिकन एजेंडा चल रहा है। नवाज शरीफ को तो बदनाम करेंगे पे नवाज शरीफ साहब सौदा करते, आर्गुमेंट करें, मेरे ऊपर ये नहीं कहेंगे, उसको जो जहां पर है वो हम कहेंगे। अच्छा हमें भी टाइम दिया करो, हम नहीं। अच्छा शाजिया बतूल साहिबा, मैं तुहाडे नाल एक सवाल है। मुस्लिम अपने जमात इस्लामी दे सेक्रेटरी जनरल कहंदे पेन कि तौहीन रिसालत एक्ट कोई मायदा लाल तरमीम नहीं कर सकता, जेड़ा ही साजिश हिस्सा किनसी हुंदा हशर सलमान तासीर जी हो जा करे सो जमात इस्लामी दे सेक्रेटरी जनरल ये धमकी जेड़ी है सही है। तुसा कोई लतीफ है ना प्रोग्राम में जी, ANP क्या कैसी ए धमकी ई वेले ई माहौल च देवण जरूरी है? नहीं, वो उनका मौक़िफ है। ये धमकी मेरे ख्याल में उन्होंने क्या सोच के दी है, लेकिन ये कि ये जितना सेंसिटिव मसला जमात इस्लामी के लिए, उतना ही सेंसिटिव मसला ANP के लिए भी है, नून लीग के लिए भी है, काफ लीग के, क्योंकि ये सब मुसलमानों की खबर है। नवाए वक्ती 21/1/2011 की खबर है जड़ी में को क्या ए वेला है यही तरह की धमकियां ना? नहीं, धमकियों का तो ये नहीं है तरीकाकार, लेकिन ये कि उन्होंने किस लिहाज से किस तरह उसको बेहतर समझा। लेकिन ये कि इस पे ज्यादा बहस इसलिए नहीं की जा सकती कि ये बड़ा हसास मामला है मजहबी मामले में, और ये एक इस्लामी रियासत है पाकिस्तान। काजी साहब अपना काजी हुसैन अहमद खैर काबिल एहतराम है मेरे वास्ते। सारी जमात इस्लामी महंगाई, बदहम, ये जो अमनी, गैस, बिजली, अपने अपने बच्चे लोग भी कहते पिन ते एक गलती जद किदे नाल थी गई है या नहीं थी, ये अल्लाह बेहतर जान दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते तुसा सारे ते सारा पाकिस्तान ते पूरी दुनिया दे मुसलमान अपनी गर्दन ला ते रसूल पाक दे जिथा पैर रखते हैं वो मिट्टी ते रख दे सो। लेकिन लोगों के जज्बात को इवें अग लावण या यही तरीके की धमकी कि उनका ए जनाब दे जमात इस्लामी दे सेक्रेटरी जनरल जेड़े तुहाडे हैं उन्होंने ये गाल की है कि हशर सलमान तासीर जिया होसी। सर क्या मुल्क मुतहम्मिल है
वजीर आजम अखेंदा पे कुछ न थी सी तरमीम ये अग लावण वाली गाल है या प्यार है किंदे नाल, ये क्या इनदे ते क्या तबसरा करे? देखें ये पाकिस्तान को बचाने की बात है, पाकिस्तान के अवाम के साथ मोहब्बत है। पाकिस्तान हर वेले खतरे चोंदे, ये पाकिस्तान बेचारा ये मुल्क जब से बना है ना, कब्जा करते जब से ये बना है, ये लोगों ने कुर्बानियां दित्तन सर पाकिस्तान ने कुर्बानी दी थी, वो बेचारे आज भी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, भूख के मारे मर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो वो है कि जज्बाती गाल जो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात करते हैं, असेंबली में बैठ के, आज भी असेंबली के अरकान ने फ्लोर पे कहा है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारी मराहत को बढ़ाया जाए। इस गरीब को तो अमरात आप दे नहीं रहे, उसको न पानी मिल रहा है, वो सैलाब ज़दगान बेचारे बैठे हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे, जिनके घर नहीं बन रहे, आप करोड़ों डॉलर बाहर अच्छा हुकूमत के ऊपर अब बात करने दें मुझे, उनके नाम के ऊपर आप करोड़ों डॉलर ले रहे हैं। हाँ। आप अभी भी कह रहे हैं कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी वो मदद नहीं की जिनके वादे किए थे, मतलब कि कशकोल आपका फैला हुआ है, लेकिन वो गरीब आज भी उस सड़क पर बैठा हुआ है, वो जो कैंप लगाए हुए। तो ये मांग किसके लिए? अवाम के लिए तो मांग उसको मिलना चाहिए ना, अवाम कह रही है, अवाम के लिए थोड़ी मांग तो उसके लिए रहे, लेकिन जहाँ जेब के लिए रहे। अगर वो पैसा कि आप मुझे बताएं कि मुल्क कितनी मुसीबतों से दोचार है। नहीं खैर उन्हां दी गाल है तो तुसा डूबे बुलेंदे पे ना करो। मैं असल में ये बताना चाह रहा हूं, ये पूरा कर दे, नहीं मांगते पैसा अगर आ रहा है, पैसे दे दे, देखिए जब पैसा आता है वो लगता भी है, बहुत बड़ा सुराख है तो पूरा काम अगर होगा, पैसा आता है सुराख है लगता भी जाता है, है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा इसलिए लोग शोर मचा रहे हैं। अगर वो पैसा लग रहा होता तो लोगों को क्या जरूरत है कि खुद ब खुद को शोर मचाए? लेकिन वो पैसा कहीं लग नहीं रहा। लाखों से जो लोग आए ना, देखे टीवी के ऊपर आ रहा है, मैंने नहीं कहा कि मुझे 20,000 रुपए मिले, इसके बाद मुझे नहीं मिले, मेरा घर डूब गया, मेरी जमीन डूब गई, मेरे मवेशी मर गए, भाई उनकी कौन मदद करेगा? आप दे तो रहे, आप मानते सब खत्म हो गया। एक सेकंड, आप मानते सब कुछ खत्म कर कर आए, आज तक जिंदा किसके बलबूते पर? मैं आपको आपका टाइम मैं ले रहा हूँ एक अल्फाज के लिए कि इधर से आप गगर फाटक से चले, कहीं भी बोर्ड लगाओ जहां घर बन रहे हैं, असास वाले बना रहे हैं, ARY वाले बना रहे हैं, खिदमत बना रही है, दूसरे बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे, इमरान खान कहीं भी बोर्ड लगा देंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इतने बड़े घर बना रहे हैं उनको देने के लिए। कि एक मुझे बता दें आप, पैसा क्यों बना रहा है? पैसा कहाँ गया? लगे ना सबसे ज्यादा उन्होंने प्रॉपर आराम से लड़के की ये भी तो प्रोग्राम में बैठे हैं, पैसा आ रहा है चल रहा है ना, हर गुरबत खत्म नहीं हो रही, गरीब खत्म हो रहा है। मेरी गाल तो सुन के $60 मिलियन जो आए इस वक्त और अब 10 मिलियन आ चुके, गरीबों को मिले ना बेचारों को, वो तो अभी भी चीख रहे हैं। आगे आने हैं। मैंने उसको नहीं कहा था टीवी के ऊपर तुम कहो कि मुझे पैसे नहीं मिले, मैं तो बैठा हुआ रोड के ऊपर बैठा हूं। का ऐड भी तो हुकूमत की तरफ से चल रहा है ना कि वो विजिट कर रहे हैं, कितने लोग हैं, क्या उनके ये होता ही रहेगा। हुकूमत की वजह से, कोई आपकी अकेले की वजह से थोड़ी जिंदा है। एक गांव में एक बात बता दे, ये ड्रोन हम लोग ले ले, बड़ी बातें ना करें, हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है अपने आवाम की हिफाजत करना। I'm sorry to say, एक सेकंड मैं आपको कहना चाहूंगी बात, इनको पता है क्या चाहिए? जिम्मेदारी होती है आवाम की हिफाजत करना। स्टॉप करेंगे, ये ड्रोन हमले जो होते हैं, हमले हो ये रहे हमारी फवाइयाँ क्या करती है? उसमें साथ दे, उसमें रास्ते में निकले कि नहीं, वो फतवा दे कोई दहशतगर्दी के हमले ना हो, हमारे मुसलमान दहशतगर्दी के लोग मरे, दहशतगर्द पैदा करे, लोग मरे, हमारे मुसलमान भाई, अच्छा जितने मुसलमान भाई मर रहे हैं वो कौन है? हमारे लोग हैं। तो उनके खिलाफ फतवा आना चाहिए जो ड्रोन हमले करवा रहे हैं। दूसरी, इस बीबी ने सही बात कही कि आवाम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, मगर $30 बिलियन 2 साल के अंदर पता नहीं कौन सी आवाम को गया। तो मेरा खतरा ये, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है, ये सब बाहर गया है, ये सब बाहर गया है, ये सब स्विस बैंकों में गया है, ये सब स्विस बैंकों में गया है। दूसरे की भी आप सुने। मसला ये कि मैंने अर्ज किया लाइक भाई से टाइम लेके, मैंने कहा 2 मिनट में आप गगर फाटक से शुरू हो जाए, आप कश्मीर तक चले जाए, मुझे मेरी बहन बता। This time check is brought to you by Zong. सब कह दो। में अगवा बराए तावान हो रहा है और लोग मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना। अच्छा जरा प्यार दे नाल, जरा प्यार। आज होम मिनिस्टर हमारा जो मिर्जा जुल्फकार कह रहे हैं कि जितना भी ये अगवा बराए तावान हो रहा है वो पंजाब के लोग आके सिंध में कर रहे हैं। अरे भाई तुम नाहालित तरीन आदमी हो, तुम सरहद अपनी सील कर दो, सरहद पे चेकिंग करो। इधर कराची में मैं आपको बता रहा हूँ, कराची निकाल कर कराची में खुदा की कसम है, खुदा की कसम है,
ये खुदा की कसम है, कराची में लैंड ग्रैबरी हो रही है, सब पार्टनर है, तहजीब से बात करें, गौ परस्त तरीके से बात पार्टनर है, करें, एएनपी पार्टनर है, पीपल्स पार्टी पार्टनर है, एनडीए पार्टनर है। प्रूफ दे बस एएनपी नाल बैठिए। मैं कैमरा उठाओ, मैं लेके चलता हूं। पंजाब में दहशतगर्दी कैमरा का उठाओ, लग जाएगा कैमरा उठाओ, मैं लेके चलता हूं। सर मेरा आप उन्होंने क्या कंट्रोल हाँ, किया मैं भी हमसे चलता हूं। पूछे एक सेकंड एएनपी दा ना भी ज्ञान के दे तुसा सबकी सबकी हैं सब अब बुरे जहां हैं, कब्जा हो रहा है वहां एनपी का झंडा लगा है, एनपी के लोग हैं, उनका हिस्सा कौम परस्त तरीकों का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, एएनपी नाल बैठिए एएनपी नाल बैठिए प्रूफ दे मेरे बात साथ ये चले, कि प्रूफ केजरीवाल हां लेके तो चले। प्रूफ दो ना मैं जोहर से आप उसको- जोहर चौरंगी से शुरू करूंगा, आपको आप मेरे जितने साथ विजिट दहशतगर्दी के करें, हमले पूरा पंजाब में जाके हुई है, छुपा कोई के नहीं लगेगा। है। आज भी समा पर हमारे आयत का बात हो रही थी, शाही सैयद साहब उन्होंने ये कहा कि आप लोग सिर्फ आपस में बातें करते हैं, आप शुरू करें हमसे, आप प्रूफ दें, आप उसको स्क्रीन पे शाही लगा सैयद दें। ने तो ना दफा आके साकू पकड़ो अच्छा, साकू मैं मारो पता क्या है? खुदा की पीछे मैं बैठ के आपको बता सियासत रहा हूँ करना कि जोहर में और जितनी उल्टी सीधी बदमाशी बातें हो रही है ना, करना। जोहर में अच्छी आपको बात नहीं परवाह है करना, उससे। इल्जाम तराशियां सिर्फ करना, एक that नाम is ले wrong। ले, इल्जाम राबिया तराशी। सिटी किसका है? मुझे सिर्फ ये बता दे हम उधर रहते हैं। जिन्होंने बनाया उसी ऊंदा है मेरे हाँ, तो मेरा नहीं है। 25 आदमी कलाशनकोफ वाले राबिया सिटी में बैठे हुए, उनका है, उनके सामने लाखानी है, लाखानी को तबाह कर दिया, उसके सामने रिमझिम टावर है, उनको तबाह कर दिया। अच्छा जी आरिफ अलवी साहब हम कह रहे ये हैं ब्लेम गेम आपके खत्म न नून थी के सी ही वो मुल्क कौन मेमन थे, उनका है राबिया सिटी तो मैं सिर्फ नहीं, एक वो बात तो ये बता कहना के चले चाहता गए हूं, ना। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जी। पिछले सारे अखबार 2 साल से अखबारों के अंदर एएनपी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोगों ने बारी बारी एक दूसरे पर इल्जाम लगाए और बड़े सख्त इल्जाम लगाए। अच्छा, जब उनको बिठा दिया जाता है तो कत्ल व गारतगिरी खत्म हो जाती है, जब वो फिर 2 महीने बाद अपने भत्तों का चक्कर होता है फिर शुरू हो जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वापस आऊं इस बात के ऊपर कि इस मुल्क को खुददार और दयानतदार क़यादत चाहिए और उसके लिए इनकलाब तैयार है और वो जमहूरी अंदाज से आएगा। इमरान खान साहब तैयार है तैयार है। 1800 वोट से तो ज्यादा लेते नहीं आप 18 लाखों वोट आएंगे। अब आप सिस्टम फिक्र को मत चेंज कीजिए, कर दे, सिस्टम वो चेंज सिस्टम करना है। जमात इस्लामी 63 साल थी क्या सिस्टम तो सब चेंज होगा इंतजार में जनाब। जिस दिन आ गए, अब वक्त बदल गया है। हम इंतजार में एमडी गुल वक्त बदल गया है। अच्छा जी बिल्कुल। हुन तहरीक इंसाफ ते जमात आ रही इस्लामी है। आंदी पई है जमात इस्लामी का मुझे नहीं मालूम, तहरीक इंसाफ आ रही वो है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सीनियर जमात है नहीं, इंशाल्लाह आ रहे हैं। आ रहे हैं इसका जब निजाम चेंज हो रहा है, कोई डील हुई किसी से डील हो गई हमारे आवाम से डील हुई डील है। से थोड़ी आएंगे, आवाम से हमारी डील। आवाम से डील हुई प्रोग्राम तो ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ मोहतरमा कौसा आमिर साहब ਦਾ पाकिस्तान पीपल पार्टी ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ मोहतरम जनाब शौकत अली सैतू साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे जनाब मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब दे मोहतरमा शाजिया बतूल साहब अवामी नेशनल पार्टी तो ताल्लुक है तो मोहतरम मोहम्मद लई खान साहब जमात